First is the problem number A. You are given an integer x and you need to find the smallest non-negative integer y such that the number x and y share the at least one common digit. In words, there exist must exist a digit d that appears in both the representation of the number x and number y. So basically it says one minute. So basically it says that you have the a number x and you need to find out the a non-negative integer y such that the both numbers x and y share the at least one common digit. Let's say the common digit is the and suppose let's say the number x is, let's say we have the number x is 1125 and the digit in this number x is 1125. Then you need to find out the a digit y, a number y that should be the minimum number and that should be the non-negative so that the both the number x and y share the equal means share at least one common digit. So I will pick the digit 1. So by this way, the number x and number y both share the at least one common digit, that is the one, and there will be the no other number y that should be the lesser than the y. Means there will be the no other y exists that is lesser than the one. So for the output for this test case should be the one. Is this clear? Yes, sir. Okay, so you can move on to the test case. This is basically the explanation part from the our test case. You can also give the input and output format and try again. The first is the input. The first line of input test line contains a number t, which is the number of test case, and the first line of each test case contains one integer x that is from 1 to 1000. So you can move from the you can solve this problem in the even big O of n square and means big O of x square or big O of x, even you can solve in the constant time and then read on the output part. For each test case output one integer y, the minimum non-negative integer that satisfy the condition. Okay, so pick the uh, first input test case. So in the first test case, you are given the an integer t, which is the number of test case, which is the 5, and for the first test case, you are given the value of the x, which is the 6. Then you need to find out the number y that is should be the smallest number and that should be the non-negative, so that the digit between the x and y should be it means at least one digit between the x and y should be the same. So I will choose to the y to the 6 and x we have already given 6 so that the both digit will be the same. Why I not choose the other digit? Let's say I not choose the 5 3 4 2 1, because if I will choose to the any other number that is the lesser than this number, so it will not say the any digit that is with the equal to the 6. So I will choose to the minimum 6. Is this clear to everyone? ये समझ में आया कि हमने 6 को ही क्यों चूज किया और इससे छोटा नंबर क्यों नहीं चूज किया? Yes, sir. Okay, so you can verify from there. So output for the first test case is the 6. You can take to the second test case, which is the 96. Value of x is the 96. So in the 96, you need to find out this is the value of the x. एंड तुम्हें कोई एक इंटीजर y तुम्हें फाइंड करना है जिससे कि तुम इन दोनों के बीच में एटलीस्ट वन डिजिट का हमारे पास शेयर हो, मीन्स एटलीस्ट वन डिजिट इन दोनों में हमारे पास कॉमन है एंड वो नंबर हमारे पास y हमारे पास छोटा होना चाहिए. तो हमारे पास टारगेट क्या रहेगा कि मैं सबसे छोटे में इस डिजिट को मैं पिक कर लूँ, वही हमारे पास आंसर हो जाएगा.
क्योंकि अगर लेट से हमने और कोई नंबर चूज किया, लेट से हमने 9 को भी पिक कर लिया और 6 को भी, तब तो ये तो 96 हो जाएगा, जो बट the 6 is lesser than the 96, so our output is the 6. सो बेसिकली इन जो भी हमें एक्स दिया है उसके सारे के सारे डिजिट तुम निकाल लो, और जो भी हमारे पास इसमें सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट हुआ वही हमारे पास आउटपुट हो जाएगा वाई। तो इज दिस क्लियर? Yes, sir. ओके, सो मूव ऑन द कोड। So basically this is a simple problem. So I will first I will take the input t, which is the test case, and for each test case I will call for the solve function. You can you can call for the solve function or directly write this code into the this for means while loop inside this loop. So for each test case I will take a integer n, which is the basically it is the x that is given in the problem, but I will take to this x by the name n. You can also take to the x, no issue. So what I will do, so basically is n नंबर के सारे के सारे हमें डिजिट निकालना होगा, तो मैं मॉडुलम ऑफ 10 ले लेता हूँ। Why I will take the modulo of 10? You can check from the here. Let's say you have the number x, n is the n or x. You can say anything. लेट्स से जो नंबर हमारे पास है वो n की वैल्यू दिस है, तो इसमें अगर सारे के सारे डिजिट निकालना हुआ तो इस नंबर को अगर मैं मॉडुलो ऑफ 10 करता हूँ, तो बेसिकली मॉडुलो ऑफ 10 का मतलब कि इस नंबर्स को अगर मैं 10 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर हमारे पास क्या आएगा, तो ऑन ऑन टेकन द मॉडुलो ऑफ दिस नंबर द होल नंबर बाय द 10 इट गिव्स द 4। तो बेसिकली हम लास्ट मॉडुलो ऑफ 10 लेने पर हमारे पास लास्ट डिजिट दे देगा, बट वी नीड टू फाइंड आउट द ऑल द डिजिट फ्रॉम द 1564, मीन्स जो भी हमारे पास नंबर दिया उसके सारे के सारे डिजिट निकाल, तो फर्स्ट डिजिट निकालने के बाद आई कैन डिवाइड टू दिस नंबर बाय द 10। तो जब इस नंबर को मैं डिवाइड करूंगा 10 से, देन इट विल गिव द 156। फिर इसके बाद बेसिकली फिर से मैं इस डिजिट मीन्स इस नंबर का अगर मैं फिर से मॉड्यूल में ले लूँ 10 के साथ, तो फिर से मैं इस डिजिट को मैं निकाल सकता हूँ। सो बेसिकली इट दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू, मीन्स टेकिंग द मॉड्यूलर and finding the digit, again they divide the number by the 10, and again I will find the digit। तो बेसिकली कब तक ये हमारा केस चलता रहेगा, जब तक कि ये हमारे पास कोई नंबर हमारे पास बचे, मीन्स कोई हमारे पास डिजिट बचे, मीन्स लेट से मिनिमम वो हमारे पास 1 हो सकता है। लेट से क्योंकि सपोज यू हैव द वैल्यू ऑफ x इज द 15, तो अगर 15 है तो एक बार तुमने डिवाइड किया मीन्स मॉड्यूलर निकाल के डिवाइड किया तो फिर हमारे पास 1 बच जाएगा, और फिर जब 1 बचेगा तो फिर से तुम मॉड्यूलर निकाल के अगर डिवाइड करोगे तो फिर से हमारे पास 0 बचेगा। फिर बेसिकली अब जब 0 बच जाएगा तो तुम्हें नीट का कोई फिर से प्रोसेस करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये कब तक चलेगा, जब तक ये ग्रेटर देन 0 या नंबर रहेगा। और तुम हर एक बार क्या कर रहे हो, वो रिमाइंडर निकाल रहे हो। रिमाइंडर को मैंने एक वेरिएबल ए में स्टोर कराया है, और फिर उसके बाद इस नंबर को तुम डिवाइड कर रहे हो, ताकि तुम अदर भी तुम डिजिट तुम निकाल सको। और जो भी अब हमारे पास प्रीवियस में हमारे पास रिमाइंडर आया है उसका तुम रिमाइंडर मिनिमम ले रहे हो करेंट रिमाइंडर के थ्रू, और प्रिंट टू द मिनिमम। ये समझ में आया कि रिपीट करना पड़ेगा फिर से? No, sir, I can see. ओके, सो I can move on the second problem. Again read the problem. You are given an array A. You are given an array A of n numbers, and you are given an integer k. The value ai describe the weather on the ith day. If it rains on the ith day, then ai equals to 1. Otherwise, the weather is good good on the ith day. Then ai equals to 1. So basically, it says that you are given an array A. So basically, it says that you are given an array A of n size, and you are given an integer k. And in the array, if the value of the ai equals to 1, means on the ith day there is the rain.
on the ith day there is the rain, and if there is I1 equals to 0 means there will be the no rain, means weather is good, means no rain, no rain. After it says that the Jin wants to visit all. uh, Jin wants to visit as many peaks as possible. One hik to peak takes exactly k days, and during each days, the weather must be good. Means the Jin can visit to the visit. Jin can visit to a peak if the that's it. Jin wants to visit all as many as peaks possible. One hik to pick takes exactly k days. Means to pick the hik, one hik, Jin takes the exactly k days. And during each of these days, the weather must be good. AI equals to 0. More family, he can start a hik on the ith day only if aj equals to 0, and it gives so basically it says that the जीन इज लेट्स से जीन इज ए पर्सन एंड वो पिक करना चाहता है, एक हिक पिक करना चाहता है, एंड इट विल पिक ए हिक if the if it continues to the k days, और वो k days में लेट्स हमारे पास k कंटिन्यूअस अगर हमारे पास 0 हुआ तभी वो हमारे पास हिक पिक कर सकता है, मीन्स जीन कैन पिक टू द वन हिक. लेट्स से we have the 4 continuous 0. Why I will pick to the only continuous 0? Because it says that the hick one hick to pick exactly k days, means एक हिक को पिक करने के लिए हमारे पास एग्जैक्टली के डेज लग रहा है, और हर एक डेज में उनके बीच के हर एक डेज में वेदर मस्ट बी गुड, मीन्स ए आई शुड बी द 0. So let's say suppose we have this type of the weather information, means we have the 4 days हमारे पास ऐसे कॉन्टिन्यूस है जिसमें हमारे पास वेदर गुड है, एंड के की वैल्यू हमारे पास 2 है, तब तो इन दिस केस देन लेट से वो इसको पिक कर सकते हैं, क्योंकि इनके बीच में हमारे पास सारे के सारे मतलब 2 डेज में वेदर हमारे पास सेम है और गुड है, एंड आफ्टर ईच वीक before starting the next, Jin must take a break at least one day, meaning that one day following a hick he cannot go on the another. और वो हिक मीन्स वन हिक लेने के बाद जिन हमारे पास एक डे का ब्रेक ले रहा है, फिर नेक्स्ट मूव पे हमारा चल रहा है, मीन्स नेक्स्ट हिक को फाइंड करने के लिए कि नेक्स्ट हिक में वो ले सकता है कि नहीं. फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ पिक दैट जिन कैन विजिट. so basically summarize the problem. तो बेसिकली यू आर गिवन एन इंटीजर ए, तुम्हें एक इंटीजर ए दिया हुआ है जिनकी साइज हमारे पास एन है, एंड यू आर गिवन एन इंटीजर के, एंड द वैल्यू ऑफ ए describe the condition of the weather. If the value of on the ith day value of the ai is the 1, means on the ith day पे हमारे पास रेन हो रहा है, means जो वेदर की कंडीशन है वो रेन है, और अगर ith डे की वैल्यू अगर हमारे पास 0, ए आई की वैल्यू 0 है, मीन्स ith डे पे हमारे पास कोई रेन नहीं हो रहा है. तो बेसिकली जिन इज ए पर्सन जो कि हमारे पास एक हिक को वो पिक करना चाहता है, तो जिन हमारे पास कोई हिक को तभी पिक कर पाएगा अगर वो कॉन्टिन्यूस हमारे पास के ऐसे सब के कॉन्टिन्यूस डे मिले जिसमें कि हमारे पास वेदर हमारे पास गुड हो, मीन्स के कंटिन्यूस हमारे पास 0 अगर मिल जाए तभी वो हिट चूज कर सकता है इस पूरे के पूरे के कंटिन्यूस 0 को, और इस के कंटिन्यूस 0 को मीन्स एक हुक एक हिट फाइंड करने के बाद इट टेक्स दी वन ब्रेक. लेट से वो हमारे पास इस डे में ब्रेक ले लिया, लेट से वीक हमारे पास इस पूरे के पूरे के की वैल्यू लेट से हमारे पास 4 है, तो जिन हमारे पास एक हिक हमने वो ले लिया टर्न, उसके बाद वो एक दिन का ब्रेक लिया, फिर उसके बाद वो नेक्स्ट कंटिन्यू करेगा हिक को फाइंड करने में कि हिक वो ले सकता है कि नहीं. तो बेसिकली तुम्हें बताना है कि मैक्सिमम जिन कितना हिक ले सकता है. इज दिस प्रॉब्लम क्लियर या फिर से एक्सप्लेन करें?
यस सर, क्लियर है। तो फिर से एक्सप्लेन करना पड़ेगा, कुछ फास्ट लग रहा हो गया। क्लियर है या फिर से एक्सप्लेन करना पड़ेगा? लास्ट पार्ट एक्सप्लेन कर दीजिए। ओके, नो इशू। तो बेसिकली मैं फिर से पूरा प्रॉब्लम एक्सप्लेन करते रहा हूँ। तो बेसिकली तुम्हें एक एरे दिया है ए जो कि n साइज का है, और तुम्हें एक इंटीजर k दिया हुआ है। जो एरे ए तुम्हें बता रहा है वो वेदर की कंडीशन बता रहा है। अगर लेट्स से वेदर हम ऑन द ith डे पे, लेट्स से ऑन द ith डे पे अगर हमारे पास ai की वैल्यू 1 है, मीन्स इसका मतलब कि रेन हमारे पास ith डे पे हमारे पास रेन हो रहा है, मीन्स। एंड अगर ith डे पे हमारे पास ai की वैल्यू हमारे पास 0 है, मीन्स ith डे पे हमारे पास कोई रेन नहीं हो रहा है। और एंड यू आर गिवन जी कि जिन एक पर्सन है जो कि हिक को सेलेक्ट कर रहा है, और उसका टास्क है कि हिक को सेलेक्ट करना, बट वो तभी हिक को सेलेक्ट कर सकता है जब हमारे पास के कंटिन्यूअस ऐसे हमारे पास डे मिले जिसमें कि हमारे पास वेदर गुड हो। मीन्स वेदर गुड होने के लिए हमारे पास हर एक डे पे हमारे पास 0 होने चाहिए, और हर एक मीन्स के कंटिन्यूअस डे पे हमारे पास वेदर गुड हो, मीन्स के कंटिन्यूअस हमारे पास 0 होना चाहिए, तभी वो हिक हम मीन्स जिन हमारे पास एक हिक को पिक कर सकता है। फिर लेट से एक हिट को वो पिक कर लिया, फिर उसके बाद वो एक दिन का ब्रेक ले रहा है, फिर नेक्स्ट हिट को पिक करने के लिए वो मूव कर रहा है कि नेक्स्ट हिट वो पिक कर सकता है कि नहीं। सो यू नीड टू फाइंड आउट द मैक्सिमम जिन कितना हिट फाइंड कर सकता है, मीन्स कितना हिट पिक कर सकता है। इज दिस क्लियर? यस सर। ओके। सो बेसिकली तो बेसिकली हमारा टास्क क्या है कि मैं कंटिन्यूअस 0 को पहले फाइंड करना है, क्योंकि अगर कहीं पर भी लेट्स से हमारे पास ये कंटिन्यूअस अगर 0 नहीं है, लेट्स से हमारे पास ये हुआ इस तरह से वेदर की कंडीशन है 3 डेज का, और लेट्स से हमारे पास के की वैल्यू हमारे पास 2 है, तब तो हमारे पास ऐसा कोई भी हमारे पास ये कंटिन्यूअस डे नहीं है जिसमें कि हमारे पास वेदर गुड हो। लेट्स से ये हमारे पास कंटिन्यूअस डे हुआ 0 और 1, तो इसमें हमारे पास वेदर हमारे पास गुड नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। 1 और 0 एक कंटिन्यूअस दो साइज में 2 डेज का हमारे पास कंटिन्यूअस मिल रहा है, तो ये भी इसमें भी हमारे पास सारे के सारे डेज में हमारे पास वेदर हमारे पास इक्वल नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो सो बेसिकली हम हमारा गोल क्या है कि मैं ये कॉन्टिन्यूस 0 को मैं पिक करूं, तभी मैं उसमें हिक मैं हिक चूज कर सकता हूँ उसे, या हिक पिक कर सकता हूँ। तो फर्स्ट इज द इनपुट टेस्ट केस in means input format. Each test case consists of several test cases. The first line contains a single integer t, the number of test case. They describe the test case follows. The first line of each test case contains two integers n and k. The second line contains n integers ai, that is 0 or 1, where the ai denotes the weather on the ith day. It is granted that the total value of n across all in test case does not exist. And output, and you need to find the output, the maximum number of hits that gene can make. So basically, the first line you are given the number of test case, and in each test case you are given two lines. In the first line you are given the two integers, the n and k. N is the number size of the array A, means size of the day which weather condition you are given, and k, and you are given the k means, and second line describe the value of array A. So move on the first test case. So pick to the first test case. The value of n is the 100. So the value of n is the 5, and k is the 1, and you are given the array, and you are given the array 1 0 triple, and you are given the array 0 1 triple 0.
Can you confirm the year? Yes. तो बेसिकली तुम्हें मीन्स 5 डेज के वेदर की तुम्हें कंडीशन दिया हुआ है एंड तुम किसी हिप को तुम तभी चूज कर सकते हो जब उनमें की कॉन्टिन्यूस एटलीस्ट जीरो होंगे। सो लेट्स से फर्स्ट हमने इस जीरो को चूज किया। तो वी हैव द एरे 0 1 0 0 0। तो लेट्स से हमने फर्स्ट इस वाले इस डे को चूज किया। तो द वैल्यू ऑफ पे इज द 1 मीन्स हमारे पास एक कॉन्टिन्यूस जीरो हमारे पास मिल गया, तो हमने एक हिप को चूज कर लिया। तो हमारे पास आंसर हमारे पास मीन्स हिप हमारे पास कितना हमने चूज कर लिया, एक हिप को चूज कर लिया। फिर उसके बाद हमने एक डे का ब्रेक लेना है, वी नीड टू टेक द ब्रेक ऑफ 1 डेज। तो यहाँ पे हमने ब्रेक ले लिया। फिर उसके बाद फिर से हमने एक डे को हमने पिक किया एंड आई विल चूज टू द हिप। सो द हिप विल बी द 2। फिर से मैं इस डे में ब्रेक ले लिया। फिर से मैं इस हिट को मैं चूज कर लिया, मीन्स इस डे पे हिट को चूज कर लिया जो कि 1 लेंथ का है, मीन्स कॉन्टिन्यूस 1 0 हमारे पास मिला है। सो द हिट विल बी द 3। सो द आवर आंसर विल बी द 3। यस यू कैन वेरीफाई फ्रॉम द हियर। इज दिस क्लियर कि कैसे हमारे पास 3 हिट हमने चूज किया? Yes, sir. ओके, सो यू कैन pick other test cases. So for the other test case, the value of n is the 7 and k is the 3. N is the 7 and k is the 3. And the array was all the zeros element. All the element is 0, 1, 2, 3, 4, 7. So this is the given array. तो इसमें हम एक के कॉन्टिन्यूस हम मैं 3 कॉन्टिन्यूस अगर मैं जीरो को चूज करूंगा तभी मैं उस डे में उसमें एक हिट को मैं चूज कर पाऊंगा। तो लेट्स से इफ आई विल पिक टू दिस 3 जीरोस, तो हमने एक हिट को मैंने चूज कर लिया। सो द वैल्यू ऑफ हिट विल बी द 1। फिर नेक्स्ट डे पे हमें ब्रेक लेना, सो आई विल टेक द ब्रेक ऑन दिस डे एंड फिर से हमने 3 हिट को मैंने चूज कर लिया। So the hick will be the total hick is the 1 plus 1, which is the 2. That is the 1 hick comes on the year and 1 hick comes on the year. So the total hick is the 2. Is this clear? Yes. And also you can take to the other test cases. So the value of n is the 3 and k is the 1. And you are given the array मीन्स फर्स्ट डे पे हमारे पास वेदर हमारे पास गुड नहीं है, सेकंड डे पे भी वेदर गुड नहीं, थर्ड डे पे वेदर गुड नहीं, एंड कहीं पे भी कंटिन्यूस हमारे पास जीरो कंटिन्यूस के जो नहीं मिल पा रहा है। सो आई कैन नॉट पिक टू द एनी पिक। सो द आंसर फॉर दिस टेस्ट केस विल बी द 0। तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं देख रहा हूँ कि कहीं पर भी क्या हमारे पास के कंटिन्यूस हमारे पास जीरो मिल रहा है। इफ एनीवेयर की द के कंटिन्यूस जीरो फाइंड, तब मैं उसको पिक कर ले रहा हूँ। एंड मैं कहाँ पे मैं पिक नहीं कर सकता, और कहीं पर भी हमारे पास 1 बीच में आ जाए मीन्स के कंटिन्यूस जीरो नॉट फाउंड। सो लेट्स हमारे पास लेट्स से वी हैव द एरे 0 0 1 0 0। So let's say we have this type of the array and the value of k is the 2। मीन्स हमें दो साइज का मैं अगर पिक करता हूँ मैं 2 कंटिन्यूस जीरो, तब मैं एक हिप को मैं चूज कर पाऊंगा। सो आई विल लेट्स से आई विल पिक टू दिस 2 कंटिन्यूस जीरो, देन हिप विल बी दी 1 एंड on this day I will be rest मीन्स ब्रेक मैं लूंगा इस डे पे एंड देन अगेन आई विल चूज टू कंटिन्यूस जीरो and I will again pick the hook hits, and again I in this test and in this day I will take the break, and again in this days I will
take the hic, then total hic will be the 3. So basically what I will do, कहीं पर let's say I will find the initial and last one, और इस initial वन से पहले तो हमारे पास सारे के जीरो ही आएंगे, तो आई विल फाइंड द टोटल नंबर ऑफ हिट बिफोर द फर्स्ट वन, and I will find the total number of pick after the last one, because after the last one it may be the no other zero, or it may be the some zero. Then I will find the how many hit I can find from this zeros, and there will be the some other possibility that the hit will present on this part. So basically to calculate the hit on the total hit and hit on the first and last one. So basically let's say the out test case is like this. Let's say the k is the one. So basically let's say if k is the one, and you need to find out the total hit between the this two one. तो अगर मैं इस डे पे मैं चूज करता हूँ हिक को, तो मेरे पास हिक की वैल्यू वन आएगी, एंड देन आई विल टेक रेस्ट ऑन दिस पार्ट. Then again I cannot pick to this part because here the weather is not good, so I will pick on this to this part, and the hick will be the 2. फिर इस टाइम पे इस डे पे मैं ब्रेक लूंगा, फिर इस डे पे मैं हिक को मैं फाइंड करूंगा, so the hick will be the 3, एंड फिर से इस डे पे मैं ब्रेक लूंगा, so the total hick will be the 3. तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ कि अगर कहीं पे भी लेट्स से हमारे पास वन, तो दिस इज द फर्स्ट वन, एंड अदर फिर से हमारे पास वन जहाँ पे भी आ रहा है, इनके बीच में आई विल फाइंड द टोटल नंबर ऑफ जीरो. So the how many the total number of zero. So basically I will find the total length. So the total length of this part, इस पार्ट की अगर मैं लेट्स से अगर मैं टोटल लेंथ की अगर मैं बात करूं, तो ये टोटल लेंथ विल बी द 4. और लेट्स से अगर हमें के द वैल्यू ऑफ द के इज द 2, तो के की वैल्यू 2 है, एंड हमें पास टोटल हमारे पास 4 लेंथ है, जिनमें कि हमारे पास एक हमारे पास वन हमारे पास लास्ट में, मीन्स वी हैव द ओनली 3 जीरो टू चूज. तो अगर मैं इस 3 जीरो को मैं चूज कर पाऊंगा करूंगा, तो मैं कितना मैं हिट मैं बना सकता हूँ. तो आई विल पिक टू दी दिस के जीरो को मैं पिक करूंगा, फिर उसके बाद एक जीरो मैं बचेगा तो उसको मैं छोड़ दूंगा. तो बेसिकली व्हाट आई विल डू कि जितना भी हमारे पास इनकी लेंथ है उतना भाई मैं के मैं कर दे रहा हूँ. तो इससे हमारे पास के प्लस वन, तो इससे हमारे पास क्या होगा कि मैं एक एक मैं एक्स्ट्रा भी ले लूंगा जो कि हमारे पास रेस्ट के लिए है. If you don't understand, let's see there. So let's see. Suppose the array is like this, and तुम्हें इसमें से हिक्स को चूज करना है, and the value of k is the 2. तो लेट्स से अगर तुम डे को चूज किए, मीन्स दिस यू विल पिक टू दिस के डेज, तो तुम्हें इस डे पे तुम्हें रेस्ट लेना ही लेना है. देन यू कैन चूज टू दिस डे ऑल्सो. तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ कि इनकी लेंथ मैं टोटल में निकाल रहा हूँ, देन द टोटल लेंथ इज द 5 इफ ऑल द जीरो इज कम्स. सो इनमें मैं लेंथ में 5 निकालो, इनमें आई विल डिवाइड टू द के प्लस वन. वाई आई विल डिवाइड टू द के प्लस वन, बिकॉज अगर के प्लस वन से आई विल डिवाइड, तो ये पार्ट भी हमारे पास कवर हो जाएगा जो कि रेस्ट वाले पार्ट. सो आई विल फाइंड द वैल्यू, लेट्स से the total value of this part is the a. तो इससे हमारे पास क्या हुआ कि लेट्स से लेंथ इज द 5 एंड द वैल्यू ऑफ के इज द 2. सो ये इस पार्ट के हमारे पास यहाँ से हमारे पास एक ही मैं हिट को मैं चूज कर पाऊंगा, दैट इज दिस हिट. 1 मिनट. तो दैट इज दिस हिट, दैट इज दिस हिट. इसको मैं 1 मिनट, आई विल चूज टू ओनली दिस हिट, और इसके बाद मैं इस डे पे मैं रेस्ट ले लूंगा. बट प्रॉब्लम हमारे पास यहाँ पे है कि इसके लिए तो मैं दो ही है जो डेट इज इक्वल टू 2, तो मैं इसको भी चूज कर सकता हूँ. तो इसके बाद मैं एक और कंडीशन लगा दूंगा कि अगर हमारे पास जितना अभी हिक बचा है इसके बाद, अगर वो इफ इट इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू के,
so I can choose to the other week. तो बेसिकली व्हाट आई विल डू कि जितने हिक हमने फाइंड किया हो अगर मैं उसमें मल्टीप्लाई मैं कर दूंगा के से, देन आई विल फाइंड द टोटल लेंथ जितना कि मैं कंज्यूम कर चुका हूँ. सो फॉर द ईयर हमें एक हिक मिला है और मैं वैल्यू ऑफ के प्लस वन इज द थ्री. सो द वन प्लस टू, वन मिनट. तो अगर मैं इसमें अगर मल्टीप्लाई मैं कर दूंगा जैसे के प्लस वन का, मैं तो मेरे पास तीन हिक में मैं तीन लेंथ में ले चुका हूँ. सो वी हैव द अदर टू लेंथ. सो आफ्टर द टू लेंथ वी कैन सेलेक्ट टू द बोथ द जीरोस एंड आई कैन मेक टू द वन हिक. तो अगर इसके बाद भी हमारे पास अगर कोई लेंथ हमारा बच रहा है जीरो, तो अगर इफ इट इज ग्रेटर देन द के आर इक्वल टू द के, सो आई विल इंक्रीज टू द हिक. Is this clear? Yeah, how I will choose to the hick? Yes, sir. Okay. So basically मैं ये कर रहा हूँ कि मैं दो मैं मीन्स आई विल पिक टू द फर्स्ट एंड द लास्ट वन, एंड इस फर्स्ट वन से पहले जितने भी जीरो है उसमें मैं निकाल लो कि कितना मैं हिक मैं चूज कर सकता हूँ, एंड लास्ट वन में एंड मैं इस लास्ट वन मीन्स लास्ट वन के बाद जितने भी जीरो उसमें मैं कितना हिक मैं चूज कर सकता हूँ. दैट इज प्रूवन बाय दिस पार्ट. एंड फिर इसके बाद अब मीन्स टू फाइंड इन बिटवीन द फर्स्ट एंड लास्ट वन, मैं हर एक बार कहीं पर भी लेट से वन हमारे पास आ रहा है तो इनके बीच में अब हमारे पास कितने लेंथ है, फिर से यहाँ से मैं सेम लॉजिक के थ्रू मैं फाइंड कर रहा हूँ कि कितने ही पे. ठीक से. सो मूव ऑन द कोड. So basically, I will take the t, which is the test case. Then for each test case, I will call for the solve function. And on the solve function, what I will do, I will take the two integer n and k, which is the size n represents the size of the array, and k represents the value that means to pick the one hick, the continuous day you need. एंड बेसिकली हमने ये एरे ले लिया एंड आई विल इंस्लाइड टू द आवर हिक आंसर बाय द आंसर. और बेसिकली इट इज द इंडेक्स टू फाइंड द फर्स्ट एंड लास्ट वन. तो बेसिकली मैं वन से एन तक मीन जीरो टू एन तक मैं मूव कर रहा हूँ एंड आई विल फाइंड द फर्स्ट वन. और कहीं पर भी इफ आई विल फाइंड द वन, तो मैं वहीं से मैं ब्रेक कर जाऊंगा और इंडेक्स में मैं उसको स्टोर कर लूंगा. सो बाय दिस वे इंडेक्स वन स्टोर द फर्स्ट वन इंडेक्स की वैल्यू मीन्स फर्स्ट वन जहाँ पे आ रहा है उसके इंडेक्स की वैल्यू स्टोर कर लेगा. सो आफ्टर इट आई विल मूव फ्रॉम द लास्ट टू फर्स्ट मीन्स n माइनस वन इंडेक्स से मैं जीरो इंडेक्स तक मैं जाऊंगा. कहीं पर भी जीरो आ गया तो आई विल पिक टू द जीरो एंड इंडेक्स टू स्टोर द लास्ट वन. हमारे पास कहाँ पे आ रहा है इसका हमारे पास इंडेक्स स्टोर करेगा. लेट्स से वी हैव द दिस टाइप ऑफ द एरे. लेट्स हमारे पास इस टाइप हमारे पास एरे है. सो बेसिकली इंडेक्स वन हमारे पास क्या स्टोर करेगा, वन मिनट. तो इंडेक्स वन हमारे पास क्या स्टोर करेगा, ये फर्स्ट वाले वन का हमारे पास इंडेक्स चूज करेगा एंड इंडेक्स टू स्टोर द इंडेक्स ऑफ दिस लास्ट वन. सो अगर कहीं पर भी मीन्स इंडेक्स वन इज माइनस वन मीन्स इफ आई नॉट फाइंड द वन एनीवेयर, मतलब if I will find all the zeros in the array means there is no one present in the array. So by this what I will do, I will find the value of x means x plus one means I will also include to the breaking part means रेस्ट पार्ट. और मैं वहां से निकाल लिया कि कितना अगर रेस्ट पार्ट का चो मैं कर रहा हूँ तो कितना मैं हिक्स को मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ. एंड माय टोटल लेंथ इज द एन, और मैं उसमें से उस हिक को मैं हिक के थ्रू जितना भी लेंथ हो रहा है उसको मैं सब्सट्रैक्ट कर दे रहा हूँ. इसके बाद भी अगर लेट्स से ए की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू के है, देन आई विल इंक्रीज टू द एक्स एंड आई विल प्रिंट टू द एक्स. दैट इज डिस्कस्ड बाय द हियर. यू कैन सी फ्रॉम देयर कि अगर इसके बाद भी अगर जो भी यहाँ पर लेंथ बच रहा है दैट इज द ग्रेटर देन इक्वल टू के, सो द आई विल
8 टू द आंसर में हमने 1 को ऐड कर दिया, मीन्स आई विल सिलेक्ट टू द 1 मोर एग। बट अगर लेट्स से हमारे पास 1 इज प्रेजेंट, लेट्स से फॉर लाइक दिस टेस्ट केस, तो मैं क्या कहूँगा, मैं फर्स्ट वन से लेकर के, सो बेसिकली दिस लूप comes from the index 1 to index 2, means it moves from the first one to last one, and if anywhere the value find 1, so मैं find कहूँगा कि उसके पीछे हमारे पास what is the value of the I. So let's say you can take this part from the here in more generalized way. So let's say I will present at this index where the 1 comes. So मैं क्या कहूँगा, मैं find कहूँगा इससे पहले हमारे पास कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं. So initially the value of I is the here, and अगर इनके बीच का मैं लेंथ निकालूंगा which is the which is stored in the x, और मैं x के थ्रू मैं देखूंगा कि मैं कितना मैं बना सकता हूँ x, and I will store to the, and so after it मैं 1 से ना स्टार्ट करके I will start our the hick from the 0, बिकॉज क्योंकि हर एक हिट के जो भी हमारे पास केट है हम चूज करें उसमें हमारे पास जीरो हमारे पास होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस जीरो. तो आई विल मूव टू द वन आई ऑन द इंडेक्स प्लस 1 इंडेक्स, और फिर इसके बाद हमारे पास लास्ट वन के बाद हमारे पास जितने भी जीरो आ रहे हैं उनकी मैं लेंथ कैलकुलेट कर लूंगा बाय द हेल्प ऑफ द n माइनस इंडेक्स 2 माइनस 1, एंड उसके थ्रू मैं हिट में कैलकुलेट करूंगा, दैट इज द same as this part, but the difference in the size, and I will print to the answer. So is this clear? Yes, sir. Clear. Okay. So move on the third problem. First is the problem. You are given n towers. Basically, you are given n towers numbered from 1 to n. That means each tower comes from the 1 to n. And the tower height is the hi. Means height of each tower is the hi. At time 0, you are on the tower with index k. Means when time is 0, then you are present at the tower which is present at the kth index page. Means time t equals to 0 पर तुम kth इंडेक्स वाले टावर पर तुम प्रेजेंट हो, and the current water level is the 1, and the initial water level is 1. Every second the water level rises by the 1 unit. At any moment, if the water level becomes strictly greater than the height of the tower, you are on your Paris. Okay. So basically, it says the you have given n towers, and you are given the height of each towers hi, and initially means at time equals to 0, you are present at the kth index height, means you are present at the tower that is present at the kth index, means you are present at the kth index tower पर on the t equals to 0, and every second, and initially means at t equals to 0 water level is 1, means water is filled till one first level, and each second, let's say for then for t equals to 1, water level will increase by the 1 unit, means every second पे हमें वाटर की लेवल हमारे पास इंक्रीज हो रही है 1 यूनिट से, मीन्स 1 लेवल से इंक्रीज हो रही है. एंड इफ एनीवेयर लेट्स से ith हाइट पे मीन्स ith टावर पे या ith टाइम पे, लेट्स से वाटर का जो हमारे पास लेवल है विच इज द W, एंड द टावर की हाइट जो हमारे पास है वो hi है, मीन्स यू आर प्रेजेंट एट द hi इंडेक्स, एंड वाटर का जो लेवल है अगर वो हमारे पास ज्यादा हो गया इस हाइट ऑफ द टावर से, देन you will be the Paris, you will be the Paris, means you will lose, and you are given a magical ability at moment x. You can start the
teleporting from tower I to tower J, which will take Hi minus Hj second. That is until moment x plus Hi minus Hj. You will be tower I, and at moment x plus Hi minus Hj, you will move to the tower J. You can start a new teleporting at same moment. You just arrive at tower J. So basically, if you want to move from the tower I to tower J, so takes of it takes the total time, the Hj minus Hi, the absolute difference of the Hj minus Hj. So let's say you are present at the tower with height 3, and you want to go on the tower whose height is the 5, then it takes the total 2 seconds, which is the 5 minus 3. So basically it says this, and it explain the some examples, and your goal is to reach any tower with maximum height before the water cover you. Determine if it is possible. So basically the problem says the problem says you are given the n towers, and you are given the height of the each tower. Let's say the height of the each tower, height of the ith tower की height, let's say हमारे पास hi है, एंड तुम्हारे पास इनिशियली टी इक्वल टू जीरो पे, मीन्स टाइम जीरो पे तुम्हें दिया हुआ है कि वाटर की लेवल हमारे पास 1 है, एंड इनिशियली यू आर प्रेजेंट एट द केथ टावर पे तुम प्रेजेंट हो, मीन्स के केथ इंडेक्स वाले तुम टावर पर प्रेजेंट हो, एंड तुम टावर आई से टावर जे तक तभी मूव कर सकते हो इन दिस टाइम एच जे माइनस एच आई माइनस ए आई सेकेंड में तुम मूव कर सकते हो टावर आई टू टावर जे, एंड एवरी सेकेंड तुम्हारे पास जो वाटर का जो लेवल है वो इंक्रीज हो रहा है बाई 1 से. सो लेट्स से हमारे पास 0 सेकेंड पर हमारे पास वाटर का जो लेवल है वो हमारे पास 1 है, तो टी इक्वल टू 1 सेकेंड पर ये हमारे पास 1 सेकेंड से बढ़ जाएगा. देन फॉर द टी इक्वल टू 2 इट विल ऑल्सो रेज बाय द 1, टी इक्वल टू 3 पर फिर से हमारे पास तीन तीन हो जाएगा. एंड तुम्हें बताना है कि क्या मैं मैक्सिमम हाइट, लेट्स से द मैक्सिमम हाइट इज द एच मैक्स, तो क्या मैक्सिमम हाइट तक मैं पहुंच सकता हूँ, एंड यू आर गिवन द सम कंस्टेंट. अगर कहीं पर भी वाटर का लेवल नॉट शुड बी द ग्रेटर देन द हाइट ऑफ द टावर, प्रेजेंट टावर, जिस भी तुम टावर पर प्रेजेंट हो उसकी हाइट हमारे पास छोटी नहीं होनी चाहिए, मीन्स वाटर के लेवल से. If you can reach on the maximum height tower by this condition, so you will win. Print as yes, otherwise you print the no. Is this problem clear? Yes, sir. Okay. So first is the input and output format. So in the input format, your first basically it gives the t, which is the test case, and for each test case the first line of each test case contains two integer n indicate the number of towers and the index of the tower you are initially on. Second line of contains the n integers h1 to hn, the height of the tower, and output for each test case output one line yes if you can reach the tower with maximum height before the water covers you, or no otherwise. So basically, you can solve this problem in the Vigo of n or Vigo of n log n. So I will solve this problem in Vigo of n. So with the first test case, which is the value of n and k is the 5 and 3 respectively. So the value of n is the 5 and the value of k is the 3. Means basically you are present at the initially you are present at the third tower, third index tower. This is basically one base indexing. You notice this, and the height of the tower is basically
3, 2, 1, 4, 5. 1 minute. 3, 2, 1, 4, 5. So this is the one base indexing, but I will consider the zero base indexing. So this is 0, 1, 2, 3, 4. And initially you are given the water का जो level है, this is the 1 है. So basically you are present at the third tower, but I choose to the zero base indexing. So initially you are present at the second tower, because if you choose to the one base indexing, then 1, 2, 3, 4, 5. So it will be present on this tower, which is the same as the zero base indexing. तो इनिशियली तुम इस टावर पे तुम प्रेजेंट हो, एंड इनिशियल द वाटर का लेवल हमारे पास 1 है, एंड योर टास्क इज टू रीच ऑन टू गो फ्रॉम द दिस टावर हाइट टू दिस टावर हाइट, मीन्स तुम्हारा गोल है कि तुम मैक्सिमम 5 हाइट वाले तुम टावर पे तुम पहुंच सको. इज इट पॉसिबल टू रीच ऑन द टावर विथ हाइट 5 और नॉट? लेट्स सी. तो अगर तुम मूव करना चाहते हो यहाँ से, देन यू व्हाट यू वांट टू डू, कि मैं इससे कम वाले टावर की हाइट पे तो मैं मूव ना करूँ. लेट्स से तुम्हारे पास टावर की हाइट लेट्स से हमारे पास 1 है, देन व्हाट यू वांट टू डू कि तुम्हें मैक्सिमाइज इस 5 हाइट वाले टावर पे तुम्हें जाना है. तो तुम क्या चाहोगे कि मैं इससे ऊपर वाले टावर पे जाऊं, फिर उससे ऊपर वाले टावर पे जाऊं, मीन्स बेसिकली मैं इसके नीचे वाले टावर पे तो ना जाऊं. तो इसके बाद लेट्स से तुम जहाँ चाहते हो इस 2 वाले टावर पे, let's say you can go on the third tower and fourth tower, fifth tower. So let's see how you will apply this. So basically, initially you are presented this towers, and the water level is the 1. So basically, you check that it is possible to go on the tower with height 2. तो टावर 2 पे जाने के लिए जो रिक्वायर्ड हमारे पास टाइम है, which is the difference between the height of this, means hi minus hj, the absolute value of this term. So it takes the 1 second to go from the tower with height 1 to tower with height 2, and by this way वाटर का जो हमारे पास अब इसके बाद लेवल हो जाएगा 1 सेकंड के बाद, that will be increased by the 2 सेकंड. तो इनिशियली तो हमारे पास यहाँ पे था, तब हमारे पास वाटर का लेवल भी हमारे पास इसके इक्वल था, डोंट वरी. फिर इसके बाद जब यहाँ पे पहुंचा तो अगेन वाटर का लेवल हमारे पास इससे छोटा या इक्वल हुआ हाइट ऑफ द करंट हाइट ऑफ द टावर. Means basically it will be the greater or equal. So it will works. फिर is it possible to go on the other height? तो बेसिकली यहाँ पे भी जाने के लिए इसे 1 सेकंड चाहिए. तो नाउ द वाटर लेवल इज द 3, that is the lesser than or equals to the current height of the tower. So again I will go on the much height of the tower, means bigger height of the tower. I will go on this tower. It will also take the 1 second. You can verify from the difference of the height of these both towers. Then again, then the water level is also with the water level is again the lesser than or equals to the current height of the tower, and the current height of the tower is the 4. And again, is it possible to go from the 4 to 5, जो कि हमारे पास फिर से अगेन हमारे पास 1 सेकंड हमारे पास लेगा. तो 1 सेकंड के बाद फिर से हमारे पास वाटर का लेवल 5 हो जाएगा, जो कि अब फिर से हमारे पास यहाँ पे कंडीशन को हमारे पास सेटिस्फाई कर रहा है. सो यस, यू कैन रीच ऑन द टॉप ऑफ द tower, means you can reach on the tower with highest height. So the output for this test case is yes. You can verify from the here. Yes, is this clear? Yes, sir. Okay, so move on the second test case. The value of n is the 1, 3, and the k is the 1, and the array is the 1, 3, 4. Array is the 1 to 4. So
first find the where you are initially present, then I will present in this index initially, means this tower initially. तो अगर मैं इसको सॉर्ट अगर कर देता हूँ तो यहाँ से मैं क्या देगा कि अगर मैं कहीं पर भी लेट से ith टावर पर मैं प्रेजेंट हूँ तो मैं उस टावर पर अब जाऊंगा जिसकी हमारे पास हाइट हमारे पास ज्यादा हो इस वाले टावर से, क्योंकि आवर गोल इज टू रीच ऑन द टावर विथ मैक्सिमम हाइट. तो बेसिकली अगर मैं इसे सॉर्ट कर देता हूँ देन इट विल फॉर दिस टेस्ट केस इट विल बी सेम एज द गिवन एरे. तो इसके बाद क्या मैं यहाँ पे मैं पहुंच सकता हूँ. डू यू सी द इनिशियल वाटर लेवल इज द 1 एंड तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए हमारे पास 2 सेकंड लगेगा. देन यू कैन चेक दी क्या हमारे पास सेकंड सेकंड पे means on the time equals to 2 what is the water level, and on the time equals to 2 water level is the 2, और जब water level is the 2 then on the second means t equals to 2 second पे हमारे पास what is the height of the tower you are currently present where. So on the move on the from the first to means this tower to this tower तो मूव करने के लिए हमारे पास 2 सेकंड लगेंगे. तो इस 2 सेकंड में हमारे पास यू कैन रीच ऑन दिस टावर, तो तुम इस टावर पर तुम पहुंच जाओगे. एंड वाटर लेवल इज आल्सो द लेसर देन और इक्वल टू द करंट हाइट देन दैट इज फाइन. फिर क्या तुम यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए हमारे पास तीन तीन सेकंड लगेगा मीन्स 1 सेकंड लगेगा. 1 सेकंड लगेगा अगेन द वाटर लेवल हाइट इज द 3 मीन्स 2 प्लस 1 is the 3 that is the lesser than or equal to this, then is this clear? 1 minute. We are given the 1 3 4. So initially and the time equals to 0. Oh sorry, uh, this part will not include. So see here, no issue. Maybe there is so mistake from my side. There was so mistake from my side. So initially the water level was 1 and initially you are present as this index. तो तुम्हें यहाँ तुम देखना चाहते हो क्या मैं हायर हायर टावर पर मैं पहुंच सकता हूँ. तो इट टेक्स द 2 सेकंड बट लेट्स से तो यहाँ पे पहुंचने के लिए हमारे पास यहाँ पे तुम कब पहुंचोगे टी इक्वल्स टू 2 सेकंड पे पहुंचोगे क्योंकि यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में हमारे पास 2 सेकंड लग रहा है एंड फॉर द 1 सेकंड के लिए तुम यहीं पे हो. 1 सेकंड पे तुम इस वाले टावर पर हो जिनकी हाइट हमारे पास 1 है और 1 सेकंड पे हमारे पास वाटर का लेवल है 1 बिकॉज इन एवरी सेकंड पे हमारे पास वाटर का लेवल 1 से इंक्रीज हो रहा है. तो 1 से बढ़ के तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा. वाटर का जो लेवल है वो हमारे पास ज्यादा है. दैट इज द हाइट ऑफ योर टावर. सो यू कैन नॉट कंसिडर टू दिस. तो आप पे मीन्स यू विल लॉस्ट टू दिस गेम. Yes, you can verify from the year. At any moment, if the water level becomes strictly greater than the height of the tower you are on, means तुम जिस भी टावर पे हो उसकी हाइट अगर हमारे पास मीन्स वाटर का लेवल जो हो तुम जिस भी टावर पे हो उससे हमारे पास उसकी हाइट से अगर ज्यादा हो जाए वाटर का लेवल देन यू पेरिस मीन्स यू लॉस्ट द गेम. तो यहाँ से तुम लॉस कर जाओगे गेम को. तो द आउटपुट फॉर दिस टेस्ट केस इज द नो. इज दिस क्लियर कि ये नो कैसे आया. Yes, sir. ओके. तो बेसिकली हम लोग क्या चेक कर रहे हैं कि फर्स्ट आई विल फाइंड द इंडेक्स कहाँ पे हमारे पास वो प्रेजेंट है वो वाला टावर मीन्स इनिशियल टावर एंड आफ्टर इट आई विल सॉर्ट टू द एरे एंड आई विल फाइंड दैट इट इज पॉसिबल टू कम ऑन एवरी एंड आई मैं हर एक सेकंड पे मैं चेक करूँ क्या पॉसिबल है कि यहाँ पे हमारे पास टावर की जो हाइट है वो हमारे पास ज्यादा इक्वल हो हमारे पास जो भी हमारे पास वाटर का लेवल है. सो यू कैन चेक द कोड हियर. So basically here I take the
First, I will take the t, which is the number of test case, and for each test case, I will call for the solve function. And for each test case means I will take the two integer n and k. K is the initially at which is टावर इंडेक्स यू आर प्रेजेंट मीन्स तुम इनिशियल तुम किस टावर के इंडेक्स के टावर पर तुम प्रेजेंट हो एंड यू आर गिवन द एरे मीन्स विच डिस्क्राइब द हाइट ऑफ ईच टावर एंड मैंने एक बुलियन एक फंक्शन मैं ले लिया हूँ देयर इज द नो नीड ऑफ द बुलियन फंक्शन यू कैन इरेज टू इट तो बेसिकली मैं फाइंड करो कि मैक्सिमम ऑफ द टावर एट जहाँ पे हमें पहुंचना है वो वहाँ पास क्या है मीन्स मैक्सिमम आपका जो टावर पे पहुंचना है वो वहाँ पास मैक्सिमम वैल्यू क्या है एंड आई विल फाइंड द आई विल चेक फर्स्टली कि जो मैं इनिशियल में टावर पे मैं प्रेजेंट हूँ उसकी हाइट इज इक्वल टू द मैक्सिमम अगर उसकी हाइट अगर मैक्सिमम के इक्वल है देन नो इशू आई विल प्रेजेंट द मैक्सिमम हाइट एंड आई विल फिल टू द यस आफ्टर इट आई विल रिटर्न अगर ऐसा नहीं है तो मैं वो फाइंड करूँगा to let's say you can verify from the here this is not maximum height so you will find the value of x कि तुम initially तुम किस टावर के हाइट पर प्रेजेंट हो so after it you will sort to the array this is same as the sort function in the sort library in the C++ so you use mm, the sort library this type not is this because it will not work in your code because for this I will define some code on the above that is no need for you तो बेसिकली हमने इस एरे को सॉर्ट कर दिया और फिर हमें इनिशियली वाटर का लेवल हमारे पास क्या है 1 है उसको मैंने ले लिया एंड आई विल टेक द इंडेक्स व्हाई आई विल चूज टू द इंडेक्स तो इंडेक्स हमें बेसिकली ये बताएगा कि इनिशियली मैं किस कौन से वाटर लेवल पे मैं प्रेजेंट हूँ किस इंडेक्स के वाटर लेवल पे मैं प्रेजेंट हूँ और फिर बेसिकली ये बता इसके बाद इस इंडेक्स के बाद हमारे पास मैं इसलिए मैं आई विल चूज लेट्स से यू आर गिवन द एरे 2 3 4 5 and let's say you are initially present at the tower with height 4 तो बेसिकली मैं अगर यहाँ से अगर मैं चलूंगा तो मैं 4 से मैं 5 पे मैं जा सकता हूँ 4 से मैं 6 पे मैं जा not go on the before this height of the tower this tower so I will choose to the index so or for each I means I will initialize to the I by the index and my I से लेकर के मैं पूरे means on the right of the array I will move and I will find to the any means adjacent height of the tower means adjacent two towers and अगर इनकी जो height है अगर जो भी यहाँ पर means you can take this part from the here I will explain to this तो लेट्स से बेसिकली मैं अगर 3 से हूँ और मेरे को 5 पे जाना है एंड इनिशियली दी जैसे टाइम इज दी 0 तो मैं क्या करूँगा एंड वाटर लेवल इज दी 1 तो लेट्स से मैं 3 से मेरे को 5 पे मेरे को जाना मैं चेक करूँगा कि क्या मैं 3 से 5 तक मैं जा सकता हूँ तो 3 से 5 जब मैं जाऊँगा तो मैं 2 सेकंड पे मैं जाऊँगा तो बट ऑन द 1 सेकंड पे हमारे पास क्या होगा 1 सेकंड पे हमारे जो वाटर का लेवल होगा वो हमारे पास 2 हो जाएगा तो क्या हमारे पास ये वाटर का जो इनिशियल लेवल था मीन्स विच इज द 1 प्लस जो भी मैं यहाँ से यहाँ तक जाने में मैं लगा रहा हूँ उतना -1 मीन्स बेसिकली द 1 मीन्स बेसिकली 2 तो इस सेकंड पे मैं इसी इंडेक्स पे मैं प्रेजेंट हूँ मीन्स आई विल प्रेजेंट एट दिस टावर तो अगर इज दिस ग्रेटर देन द हाइट ऑफ द करंट टावर so I will return the false but here is not the this condition hold so here it will works so basically I will check this part and if anywhere it will true then I will print to the no and I will return and if it is not hold देन आफ्टर इट 2 सेकंड के बाद अब जो हमारे पास वाटर का लेवल होगा इनिशियल वाटर का लेवल हमारे पास 1 था
तो अब 2 सेकंड के बाद हमारे पास वाटर का लेवल हमारे पास 3 हो जाएगा। तो आई विल एड टू द वाटर लेवल एंड अगेन आई विल मूव टू द आई, सो दैट द मैं यहाँ से so that I move to the from the 3 to 5 minutes I move on the next tower। एंड अगर मैं इस तरह से सारे के सारे मैं टावर को मैं विजिट कर दिया, देन आफ्टर इट आई विल रीच ऑन द लास्ट ऑफ द टावर, so I will print the yes। Is this clear? Yes, sir. Okay, so सो इस प्रॉब्लम में दिस इज द लास्ट टाइम प्रॉब्लम 1037 से है ये। इस प्रॉब्लम में हमें कसिनोज दिए होते हैं, हम हर कसिनो के लिए 3 इंटीजर डिफाइन किए होते हैं। इंटीजर्स और एल आई, आर आई एंड रियल आई। ठीक है, हम प्रॉब्लम में एल आई को, हम यहाँ पे एल आई को एस टी मानेंगे, आर आई को एंड मानेंगे एंड रियल आई को रियल आई रहने देंगे। ठीक है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इजीनेस ऑफ एक्सप्लेनेशन आई एम अज्यूमिंग दिस थिंग्स। ठीक है, तो और हमें क्या दिया होता है, इनिशियली हमें के पॉइंट्स दिए होते हैं। अब ये कहा है क्वेश्चन में कि हम किसी भी कसिनो में जाके प्ले कर सकते हैं, नंबर ऑफ पॉइंट्स अवेलेबल है दैट इज इन बिटवीन एस टी एंड आर आई। ठीक है, एस टी एंड एंड। तो अगर मेरे पास जो करेंट नंबर ऑफ पॉइंट्स है दैट इज इन बिटवीन एस टी एंड एंड, तो हम इस कसिनो में जाके प्ले कर सकते हैं। और प्ले करने के बाद आउटकम क्या होगा, प्ले करने के बाद सिंपल सा होगा कि हमारे जो पॉइंट्स होंगे दैट विल बिकम रियल आई। ठीक है, ये आउटकम होगा प्ले करने का। अब क्वेश्चन में क्या रहा है कि हम किसी भी ऑर्डर में कसिनोज को विजिट कर सकते हैं और सबको विजिट करना भी मैंडेटरी नहीं है। और फाइनली हमें जो क्या बताना है कि द नंबर ऑफ पॉइंट्स दैट वी कैन गेट, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स दैट वी कैन गेट आफ्टर प्लेइंग ऑल दिस। तो सबसे पहली चीज जो क्वेश्चन पढ़ के मुझे समझ में आती है कि मुझे क्वेश्चन में अपने पॉइंट्स को मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, अगर मैं किसी भी ऐसे कसिनो में जाऊं जिसके रियल आई की वैल्यू मेरे करंट पॉइंट से कम है, ठीक है, मेरे करंट पॉइंट से कम है या उसके बराबर है, तो मुझे इस कसिनो में जाने का बेनिफिट नहीं मिलेगा। राइट, आई होप यू गेट इट। मुझे इस कसिनो में जाने का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि मुझे तो ऐसे कसिनोज में जाना चाहिए जो मेरे करंट वैल्यू से स्ट्रिक्टली ग्रेटर रहना। ठीक है, जिनकी रियल आई वैल्यू यानी कि जितना कॉइन वो मुझे प्रोवाइड कर सकते हैं खेलने के बाद, उनकी वैल्यू ग्रेटर है। तो मुझे स्ट्रिक्टली ऐसे सभी कसिनोज में जाना चाहिए। तो ठीक है, एंड ऑल्सो मैं गेम कब खेल पाऊंगा, जब मेरा करंट आई जो होगा दैट लाइज इन बिटवीन द स्टार्ट एंड एंड। ठीक है, एस टी एंड एंड, ये दो चीजें हैं जिन पर हम ध्यान देके कोड कर सकते हैं इसको। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, हम लाइक एक अरे क्रिएट कर सकते हैं। इसके कोड पार्ट का सोल्यूशन मैं बता रहा हूँ। जनरल सोल्यूशन तो यही हो गया कि तुम एक अरे क्रिएट कर लो एंड उसको सॉर्ट कर लो रियल आई के बेसिस पे, और हर बार करेंट को कंपेयर करके अपडेट करते रहो। सिंपल सा सोल्यूशन है इसका। अगर इसका कोड पार्ट मुझे तुम्हें दिखाना हो तो ऐसा हो सकता है कि उसका कोड पार्ट ऐसा दिखेगा। कोड पार्ट में तुम एक अरे क्रिएट कर सकते हो। अरे कैसी होगी, अरे होगी तुम्हारी पेयर्स ऑफ पेयर की। ठीक है, पेयर कॉमा देन पेयर, पेयर के अंदर तुम्हारा एल एन नॉट कॉमा, पेयर के अंदर एक वैल्यू इंटीजर एंड उसके अंदर फिर एक पेयर, जिस पेयर एल एन। अब ये समझते हैं कि ये पेयर कर क्या होंगे। तो ये जो पहला पेयर है दैट विल होल्ड द पेयर ऑफ रियल आई एंड एस टी कॉमा एंड। ठीक है, ये जो पहला पेयर है रियल आई और एस टी कॉमा एंड के पेयर को सेव करेगा, और जो दूसरा पेयर है एस टी और एंड के पेयर को सेव करेगा। ठीक है, एंड हम यहाँ पे फिर इसको इनपुट लेके फिर ये सॉर्ट कर सकते हैं इसको, ये अरे को। अब जैसा कि हमें बताया है बाई कन्वेंशन जो एसटीएल सॉर्ट है वो क्या करता है, वो फर्स्ट वैल्यू के बेसिस पे सॉर्ट कर देता है। तो मेरे के सारे अरे एलिमेंट्स जो है रियल आई के बेसिस पे सॉर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं एसटीएल सॉर्ट का यूज करके सिंपली इसको सॉर्ट कर सकता हूँ बेस्ड ऑन रियल आई वैल्यूज। अब इसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ आगे, एंड आफ्टर डूइंग ऑल दिस मैं सिंपली एक वैल्यू ले सकता हूँ लाइक से करेंट। ठीक है, अब करंट में मैं क्या स्टोर कर दूंगा, करंट, या फिर मैं बेटर से करंट से भी बढ़िया है मैं लेता हूँ आंसर। ठीक है, आंसर, आंसर एक वेरिएबल ले सकता हूँ और उसमें के स्टोर कर सकता हूँ। के क्या है, मेरा करंट एलिमेंट्स, और आंसर मुझे फाइनली क्या देगा, द मैक्सिमम पॉइंट्स आई कैन गेट। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक नॉर्मल सा फॉर लूप चला सकता हूँ। फॉर लूप में मैं क्या करूँगा, 0 to n-1 का एक फॉर लूप होगा। फॉर लूप में मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली क्या करूँगा, चेक कर लूंगा। मैं पहले तो बेसिकली मेरा जो अरे है ना ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टाइप का है, पेयर ऑफ पेयर ऑफ पेयर है। तो मैं यहाँ पे आके इस अरे को ब्रेक कर लूंगा। ठीक है,
इस एलिमेंट को ब्रेक कर दूंगा 3 पार्ट्स में। 3 पार्ट्स कैसे होंगे? ARR ऑफ आई को मैं ब्रेक कर दूंगा डॉट फर्स्ट डॉट सेकंड करके, वो तो मैं आता ही होगा, दैट इज नॉट टू टफ। ARR ऑफ आई को मैं ब्रेक कर दूंगा, ARR ऑफ आई को मैं यहाँ पे ब्रेक कर दूंगा रियल आई, ST और एंड, 3 हिस्से में मैं ब्रेक कर दूंगा। अब मैं एक नॉर्मल सी एक कंडीशन लिख दूंगा कि मेरा जो इफ कंडीशन कैसा होगा, मैं कब उस पर्टिकुलर कैसीनो में जाना पसंद करूंगा, जब मेरा जो रियल आई है दैट इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन माई करेंट नंबर ऑफ पॉइंट्स। तो मेरा करेंट नंबर ऑफ पॉइंट्स पर स्टोर करता है आंसर। अच्छा, ये तो मैं तब होगी जब मैं जाना पसंद करूंगा, और मैं जा कब सकता हूँ? मैं जा तब पाऊंगा जब मेरा जो रियल आई होगा दैट लाइज स्ट्रिक्टली इन बिटवीन ST एंड एंड। मतलब क्या है कि वो ST से रियल आई एंड साथ ही साथ मेरे एंड से ये छोटा या इसके बराबर है। ठीक है, यहाँ पे आई कैन राइट इट टू बी द आंसर। अगर ऐसा है तो मैं सिंपली अपने आंसर को किससे अपडेट कर सकता हूँ? मैं अपने आंसर को रियल आई से अपडेट कर सकता हूँ। दिस वॉज अ सिंपल सोल्यूशन। अब इसमें ये भी है कि मैं सॉर्ट क्यों कर रहा हूँ। तो सॉर्ट देखो, मैं दो चीज़ों की वजह से कर रहा हूँ। पहला तो मुझे क्या करना है, सॉर्ट करने से मुझे क्या बेनिफिट होगा, मुझे अपने कसिनोज ऐसे मिल जाएंगे जो मेरे लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, तो मुझे रियल आई के बेसिस पे सॉर्टेड कसिनोज मिल जाएंगे रियल आई के बेसिस पे। ये तो पहला रीजन हो गया। और दूसरा इसका स्पेसिफिक रीजन ये है कि जैसे हमें ऑर्डर में नहीं मेंशन था कि किस ऑर्डर में जा सकते थे। ठीक है, तो ऑर्डर जब नहीं मेंशन है तो हो सकता है तुम अगर जो गिवन ऑर्डर तुम्हें दिया हुआ है उससे ही विजिट करना चाहो तो तुम मैक्सिमम कॉइन ना गेन कर पाओ। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन सिंपल सा है। लेट्स सपोज 8 to 10 में तुम्हें 20 पॉइंट्स मिल रहे थे, और फिर 3 to 5 में तुम्हें 10 पॉइंट्स मिल रहे थे, और इनिशियली तुम्हारे पास लेट्स सपोज 2 पॉइंट्स थे। तो अगर मैं इसी गिवन ऑर्डर में इसको विजिट करूंगा तो इस वाले पे तो मैं कभी विजिट कर ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरा 2 जो है, सॉरी इसको 3 कर लेते हैं, जो मुझे गिवन पॉइंट्स है 3 है, और जो मेरा 3 है इन दोनों के बीच में लाई तो नहीं कर रहा है, तो मैं 20 पॉइंट्स तो कभी ले नहीं पाऊंगा। मैं फिर मेरा 3 इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, तो मैं आंसर कर दूंगा 10, जो कि रॉन्ग होगा। बट अगर इसी को मैं रिवर्स कर दूं, मैं पहले इस वाले पे जाऊं, तो मेरा जो आंसर होगा वो 3 to 10 बन जाएगा। अब क्योंकि मुझे पता है 8 to 10 के बीच में आएगा 10, तो फाइनली मेरा आंसर क्या बन जाएगा 20। तो इसका मैक्सिमम आंसर कितना दे पाऊंगा मैं? 20। इसीलिए हम सॉर्टिंग कर रहे थे इन दो रीजन से। ठीक है, इसका कोड पार्ट देख लेते हैं। इसका कोड पार्ट भी ऐसा कुछ बहुत टफ नहीं है। इसमें हम देख सकते हैं कि रियल आई मैंने लाइक यहाँ पे एन और की करके इनपुट्स डिफाइन कर दिया है, और यहाँ पे फिर एक फॉर लूप चला के उसमें रियल आई एस टी और एन डी करके इनपुट ले लिया, और फिर जैसा कि मैंने बताया था पेयर ऑफ पेयर की अरे मैंने बनाया, तो उस रियल और आई और एस टी और एन डी में मतलब ये पूरा स्टोर कर दिया है। एंड आफ्टर दैट मैंने सॉर्ट किया, आंसर को इनिशियलाइज किया, आंसर इज इक्वल टू के से, एंड देन फिर एक फॉर लूप चला के रियल आई एस सी और एंड को गेट कर लिया है, चलो टेम्परेली ऑब्टेन कर लिया है अपने कंपैरिजन के लिए, एंड फिर यहाँ पे जाके फाइनली कंपेयर करके रियल आई इज ग्रेटर देन आंसर, एंड उसके बेसिस पे आंसर दे दिया। तो दैट वाज ऑल इट।